नमस्कार दर्शक बंधु मु कल्याणी मिश्र एकेएम क्रिएशन चैनल को आपण मान को स्वागत करुछि। आजिर विषय वस्तु धर्म और मतवाद उपरे पार्थक्य। बहुत सुंदर भाव मोर धर्मशास्त्र पुराण पर पार्थक्य कहले कि आउटे प्रश्न है जे सृष्टि आरंभ किपरि होइथिला विभिन्न शास्त्र मत कौन है देखो विभिन्न शास्त्र रे आमर सत्यता सनातन वैदिक धर्म छाड़ी देले अन्य शास्त्र गुड़िक मत जे आदि सृष्टि जिते होता ताकू परमेश्वर करते बा इस्लाम धर्म रे अल्लाह सृष्टि आमे जहाँ को परमात्मा परमेश्वर कहूँ ताकू ईसाई धर्म बा ख्रिस्टियन धर्म भी परमेश्वर कहते प्रभु कहते मुसलमान धर्म अल्लाह बोली ग्रहण कर मो मत परमेश्वर परमात्मा एवं अल्लाह ये केबे भी एक नुहति। कारण ईश्वर परमात्मा परमेश्वर सर्वज्ञाता सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान किंतु मोर जी अध्ययन मुझे उपलब्धि करी भी तर्कता भीतर मु देखी विलक्षण वितर्क कह विलक्षण कह अल्लाह किंबा ख्रिस्टियन धर्म में वर्णित परमेश्वर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वर्णित परमेश्वर सह से माने एक नुहति। या विषय अवश्य बर्तमान विस्तृत भाव ये तो गोटे बहुत बड़ अध्याय कारण गोटे धर्म शास्त्र को आलोचना करने बहुत समय सापेक्ष तथापि मु फेज बाय फेज ताकू निश्चित भाव आगु को से अनुसार दर्शक मानक बुझे दबा किंतु ईश्वर एवं अल्लाह एक नुहति किंतु वैदिक शास्त्र परमात्मा एवं ईसाई धर्म परमेश्वर ये भी एक नुहति। अच्छा अच्छा आपण जति की दूर माने मो जति की ताको पढिछि माने व्याख्या करिछि बा तर्क ता ऊपर जति रखिछि से माने तर्क सिद्ध से सब शास्त्र हे परिबो नाही एवं ता भी मो सर्वमुख्य दर्शक मानक अवगति पाई भी मु वर्तमान तुमको गोटे छोटिया जिनिस बुझाई दउछि जे आमे फेज बाय फेज जीवा। ईसाई धर्म गोटे अच्छी धर्मशास्त्र है पवित्र बाइबल। ये देख ये पवित्र बाइबल हाँ ये पवित्र बाइबल ये आदि पुस्तक ये दुई भाग विभक्त। गोटे है नूतन नियम गोटे पुरातन नियम। प्रथम आम ये पवित्र बाइबल आरंभ करिया। पवित्र बाइबल रे दुई भाग रे विभक्त गोटे पुरातन नियम गोटे होची नूतन नियम। एठी मोर प्रश्न होची ईश्वरंकर सृष्टिर नियम होची गोटे कहीं सी सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान एवं सर्वेश्वर सर्वर
ଈଶ୍ୱର ସିଏ ସର୍ବର ମାଲିକ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିୟମରେ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ୟା ଉପରେ ଯେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବି କହୁନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆସିଲା କଣ, ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା? ଆସିଲା ନିୟମ ତ ଗୋଟେ, ଗୋଟାଏ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିତର୍କ। ବିତର୍କ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୁହନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଏକ ନୁହନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମ ହେଲା କେମିତି, ନୂତନ ନିୟମ ହେଲା କେମିତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଏ ହଉଛି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ, ବାଣୀ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ହେଲା କେମିତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ହେଲା କେମିତି? କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ସବୁ କରିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଯାହାକି ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁ ପୂର୍ବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ଯେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ୟା ଦେହରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଣ କଣ ହେଇଥିଲା, କିପରି ସୃଷ୍ଟି? କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, এই বাইবেলে বর্ণিত পরমেশ্বর সৃষ্টি কিপরি କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ୟା ଦେହରେ ଆକୁ ମୁଁ ଯାହା ତର୍ଜମା କରିଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଓ ବିତର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ କଣ କଣ ବିତର୍କ ରହିଛି, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବିତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖା ହେଲା ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଲା। ବିତର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଆ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକାଶକୁ ଯଦି ଅନ୍ୱୟ କରିବା ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ, ଆ ଅର୍ଥ ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ୟକ ଅଳ୍ପ, ଅଳ୍ପ। ଆଜ୍ଞା କାଶ ଅର୍ଥ ଦୀପ୍ତି ଦୀପ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ମଣ୍ଡଳ ହେଲା ଗୋଲାକାର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଲାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୀପ୍ତି ବା ଆଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ବା ସମ୍ୟକ୍ କିଛିଟା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ। ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୋଲାକାର ଯାହା ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଦ ବୈଦିକ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବେଦ କହିଲା ଯେ ଆକାଶ ହେଲା ମହାଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ମହାଶୂନ୍ୟଟାକୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଶୂନ୍ୟକୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ଶୂନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟକୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଇଟସେଲ୍ଫ ତ ସେ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବ। ମୋ ମତରେ ସିଏ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରଟା ନେଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆକାଶ ନା, ଆକାଶ ହେଲା ମହାଶୂନ୍ୟ। এই ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଲେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଉଲ୍ଲେଖ, ମାନ୍ୟତା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କହୁଛି। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ,
पृथ्वी सृष्टि है निर्जन है ठीक अच्छे जनशून्य बा कौन से क्रिएचर जंतु जोता गछ वृक्ष लता किछि ना ठीक निर्जन निर्जन ओ शून्य पृथ्वी शून्य हबो केमिति पृथ्वी रे तो माटी रहिबो माटी रहिछि पत्थर रहिबो किछि गोटे माने वस्तु को नहीं तो पृथ्वी के एरिया पृथ्वी के एरिया सृष्टिटा संभव पर एक अछि तेणु सेटा शून्य केमिति हबो ना एही अर्थ शून्य जदि धरा जाए पृथ्वी जनशून्य बा जीवन शून्य थिला जीव सत्ता शून्य शून्य थिला एटा धरा जाय पारे किंतु शून्य नथिला पृथ्वी रे माटी थिला पत्थर थिला गोड़ी थिला वायु थिला हला जल थिला जल न थाई पारे वायु थिला वायु भी न थाई पारे किंतु एई माटी गोड़ी पत्थर तो थिला तार शून्य होला केमिति शून्य अर्थ किछि न रहइबा किछि न रहइबा आज्ञा ठीक अछि जल ऊपर अंधकार थिला तार अर्थ पृथ्वी शून्य नथिला काहे ना पृथ्वी रे जल थिला पृथ्वी रे माटी थिला रे जीव जगत संभव पर ही पारे हबो तेणु पृथ्वी ऊपर आउ गभीर जल ऊपर अंधकार थिला पुनी परमेश्वर का जल ऊपर व्याप्त थिला तार अर्थ पृथ्वी थिला ये माटी थिला बा सृष्टि हला तापर जल थिला एवं से जल ऊपर परमेश्वर आत्मा व्याप्त थिला जदि पृथ्वी ऊपर परमेश्वर आत्मा व्याप्त थिले मोर वितर्क शून्य रे जल रहिला केमिति जदि पृथ्वी शून्य शून्य रे जल रहिला केमिति जल रहिबा पई गोटे आधार दरकार निश्चित बिना आधार जल रहि परिबो तो जदि पृथ्वी रे जल थिला पृथ्वी शून्य नथिला जमा नथिला शून्य इहला वितर्क आज्ञा अच्छा पुणी पुनश्च गभीर जल पर अंधकार थिला एवं परमेश्वर का आत्मा जल ऊपर व्याप्त थिले अर्थात अंधकार ही परमात्मा जहाँ युक्ति संगत नुहे जदि तथापि आम मानिबा पृथ्वी रे जल थिला एवं से जल ऊपर भाग रे कोन थिला ना परमेश्वर का आत्मा व्याप्त होई थिले जदि परिव्याप्त हेइथिले जदि परिव्याप्त हेइथिले परमेश्वर को स्वरूप है परमेश्वर ज्ञानमय दीप्तिमय आलोकमय आलोक ही आलोकमय परमेश्वर होती दीप्तिमय ज्ञानमय ज्ञान हल आलोकर उत्स तेणु जिते से परिपूर्ण ज्ञानर भंडार परमेश्वर बोली आम ग्रहण करुचे ताले जो परमेश्वर से अंधार रहा केमिति कारण से लिखिले जे परमेश्वर का आत्मा जल उपर व्याप्त थिला जल उपर अंधकार थिला एवं परमेश्वर को आत्मा व्याप्त थिला तार अर्थ बाइबल वर्णित परमेश्वर को आत्मा अंधकार पूर्ण अच्छा सेटा आलोक पूर्ण बा आलोकर उत्स नुह ज्ञानमय नुह कारण आलोक कौन ज्ञान होला आलोक अज्ञान होला अंधकार तेणु परमेश्वर ईसाई शास्त्र वर्णित परमात्मा अंधकाराच्छन्न एवं अज्ञान ये है द्वितीय वितर्क वर्तमान तृतीय वितर्क परमेश्वर कहले दीप्ति हेउ तहिरे दीप्ति हला ये आ गोटे वितर्क परमेश्वर निराकार मु आगुरु कहिथिली कहिबा पई गोटे शरीर दरकार अवयव दरकार पाटी दरकार दांत दरकार मुह दरकार जीभ दरकार स्वरतंत्र दरकार वायु दरकार सब दरकार एतक हेले ही गोटे शब्द उच्चारण होई परिबो जदि परमेश्वर निराकार परम ब्रह्म ताकर आकार नहीं से कहिले केमिति पुनी परमेश्वर कहले दीप्ति हेउ अर्थात से अंधकार तो से कहले दीप्ति हो दीप्ति हबो केमिति दीप्ति बा आलोक आसीबो कोठु आलोकर उत्स कोन सब अंधकार आलोकर उत्स आसिला कोठु कारण सूर्य को विषय रे पर्यंत किछ लिखा जाय ना सकल आलोकर अधिकारी बा उत्सर अधिकारी सूर्य तेणु जदि सूर्य एठी नाहांती ताले केमिति दीप्ति हला से दीप्तिर उत्सटा कोन तेणु ये तृतीय जो पंक्ति रही या मध्य ये ही
होची वितर्क। अच्छा अच्छा माने मु कहूची ईश्वर वेद वर्णित परमेश्वर आउ ईसाई शास्त्र वर्णित परमेश्वर तांको भितरे डिफरेंस। चतुर्थ परमेश्वर दीप्ति की देखिले जहा उत्तम तहु से अंधकार और दीप्ति को भिन्न कले। देखिबा गोटे जिनस हम देखिबा केमिति परमेश्वर दीप्ति की देखिले अर्थात चक्षु थिला परमेश्वर आखि थिला आखि नथले से देख परिबे किंतु परमेश्वर निराकार तांकर शरीर नाही न तस्य प्रतिमा अस्ति वेद वर्णित हला न तस्य प्रतिमा अस्ति तांकर कोनसी प्रतिमा नाही ताले से देखिले केमिति ताकर आखि आसला कोटे बिना चक्षुर देख परिबेनी कि ये हला आउ गोटे वितर्क एवं देखिले जे ताहा उत्तम तहु अंधकार और दीप्ति की भिन्न कले। दीप्ति एवं अंधकार को भिन्न असंभव व्यापार जोठी दीप्ति अच्छी सेठी अंधकार ही अच्छी जो अंधकार दीप्ति ही रहिबन अंधकार हो कारण आमे एठी गोटे आलोक लागिछि एठी हातरा देले एकोटा अंधार देखा होछि ताले एक तो दीप्ति अच्छी अंधार लगा क्या तो दीप्ति रहिले अंधकार अंधकार रहिले दीप्ति न रही पारे अंधकार रहिले दीप्ति न रही पारे कि दीप्ति रही माने अंधकार हला तेणु दीप्ति अंधकार को अलग करबा ये अंगांगी भाव जड़ित हला तेणु सेति में लिखिली देखिबा पे चक्षुर आवश्यकता अछि परमेश्वर निराकार होइतो तांकर चक्षु आसेला किपरि परमेश्वर परमात्मा सर्वज्ञता किंतु उक्त पुस्तक रे वर्णित परमेश्वर अज्ञान अटंती कारण से दीप्ति की देखिले जे दीप्ति होची उत्तम अंधकार अनुत्तम तार अपोजिट ताहले दीप्ति की देखिबा पूर्वरु ईश्वर बाइबल वर्णित ईश्वर ज्ञान नथिला जे दीप्तिटा उत्तम कि अंधकार उत्तम से देखिला परे जानिले तेणु से सर्वज्ञता नहंती तांकर संपूर्ण ज्ञान नाही माने कहार ज्ञान नाही बाइबल वर्णित परमेश्वर को संपूर्ण ज्ञान नाही ओहो बाइबल रे जो परमेश्वर वर्णित आदि पुस्तक रे बा आदि नियम रे प्रथम नियम रे जो परमेश्वर वर्णित से संपूर्ण ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान रो अधिकारी नहंती कारण से दीप्तिटा जे अंधकार ठू अधिक उत्तम से कथा से जानि नथले देखिला परे जानिले एवं तांकर चक्षु थिला न से देखिले केमिति अच्छा गला तेणु उभय जता परिपूरक तांको भिन्न करिया भी असंभव तापर आसिला जे अनंतर परमेश्वर कले जल मध्य शून्य जात होई जल को दुई भाग करी भिन्न करू परमेश्वर कहिले जल मध्य रे शून्य सृष्टि होई जल को दुई भाग कर जल मध्य रे शून्य सृष्टि होवा केबे भी संभव ना जल मध्य रे शून्य केबे सृष्टि हे करिवो या गोटे असंभव व्यापार गोटे जगह रे पानी रही धरा जाओ गोटे नदी रे पानी रही हम तो दी भाग करिया कोन करिवा मझे गोटे बंध पके दवा तार एक पानी हेला पटे से पटे हेला किंतु आमे शून्य सृष्टि करि परले कि ना सेठो अंतर सृष्टि कले कोन से वस्तु द्वारा किंतु शून्यता द्वारा न तेणु जल मध्य रे शून्य सृष्टि करी दुई भाग केबे भी संभव तेणु यह ग्रहणीय नुहे है जल को दुई भाग कर जल मध्य शून्य सृष्टि करने संपूर्ण हास्यास्पद बाइबल है एही रूपे परमेश्वर शून्य निर्माण करी शून्यर ऊर्ध्वस्थ जल को शून्यर अधस्थ जल को भिन्न कले तहिरे से रूप है अर्थात बाइबल कहते बाइबल वर्णित परमेश्वर कौन कले संपूर्ण जल को दी भाग करदे गोटे भाग ऊपर रखिले गोटे भाग तले रखिले मझीटा शून्य करदे
एठी आम साधारण भाव में चिंता कर जानिबा जे उपरस्थ जल हुए तो मेघ को अनुमान करा जाई पारे। अच्छा मेघ को ग्रहण करा जाई पारे हाँ किंतु मेघ जल नुहे जलर गोटे रूपांतरित अवस्था अवस्था आगे मेघर के उदा हेबनी गाधे पड़ी ठंडा हेबनी ना मेघ जलर गोटे रूपांतरित अवस्था अवस्था जहा कि हालु घाई ऊपर अछि ऊपर अछि आगे जेतेबेले सी ओजन होउछि खसी जाउछि तो खुशी अछि तेणु जल को भिन्न करी मझिरे शून्य सृष्टि करवा असंभव। देखो केते रही वितर्क रही आदि साधारण लोक को आमे गभीर भाव में जदि प्रत्येक शब्द और वाक्य को आमे जदि ध्यान दवा आगे आगे एवं प्राकृतिक नियम एवं तर्क दृष्टि देखा अच्छा ताहले या भितरे एई सब जिनिस रही अच्छा अच्छा तापर आसला आउ परमेश्वर से शून्यर नाम आकाश मंडल देले पुणी संध्या और प्रातः काल होई द्वितीय दिवस तार अर्थ ये प्रथम दिवस रे से सृष्टि पृथ्वी जल करके दीप्ति एवं आलोक करदेले द्वितीय दिवस रे जल को दुई भाग करी महाशून्य को सृष्टि कले ये द्वितीय दिवस हला। एठी गोटे प्रश्न उठे दिवस किंबा रात्रि आसीला कोठो जेतेबेले सूर्य नक्षत्र ग्रह तारा नाहांती सेठी दिवस आसीबो दिवस आसी सूर्यंकर अनुपस्थित रे दिवस हिसाब होला केमिति केमिति है सृष्टि तो आरंभ होइछि हां सृष्टि आकाश मंडल तो सूर्य नाहांती ना हंती ताले द्वितीय दिवस रे प्रातः काल संध्या काल हला केमिति केमिति है जो सूर्य नाहांती से प्रातः काल हबो केमिति संध्या काल हबो संध्या काल आगे ये हला तार वितर्क वितर्क पूर्वर आकाश मंडल और शून्यर व्याख्या करिछे वर्तमान संध्या और प्रातः काल निरूपण करिवा प्रातः संध्या सूर्यंकर उपस्थिति रे निर्णय हुए आगे बिना सूर्य रे प्रातः संध्या होनी भगवान द्वितीय वर्णित द्वितीय दिवस पर्यंत सूर्य चंद्र ग्रह तारका मंडल उत्पत्ति विषय रे बाइबल एक पर्यंत नीरव बाइबल लिखा है नहीं किछि ताले प्रातः काल संध्या काल हला केमिति द्वितीय दिवस हला केमिति अच्छा तेणु सूर्य बिना प्रातः संध्या किपरि संभव हला अच्छा अच्छा ये होची वितर्क अच्छा अच्छा हाँ वर्तमान आसला तृतीय दिवस बाइबल वर्णित तृतीय दिवस रे कोन कोन घटिला मु 6 दिवस पर्यंत जीवी जोटी 6 दिवस रे मनुष्य सृष्टि हेछि तापर पुणी आर अध्याय को वर्णना करिबा तृतीय दिवस रो तर्जमा आकाश अधस्थ समग्र जल एक स्थान रे संगृहीत हो एवं स्थल प्रकाश हेउ आकाश अधस्थ समग्र जल एक स्थान रे संगृहीत हेउ एवं आकाश एवं स्थल प्रकाश हेउ ताले वर्तमान पर्यंत स्थल भाग प्रकाश होई नाही नाही तार अर्थ जल भाग संपूर्ण पृथ्वी जल द्वारा निमग्न होई गेलछि वर्तमान बाइबल वर्णित परमेश्वर कौन कहले जे आकाश अधस्थ जो जल रहिला से समस्त जल गोटे जगह को आसंतु मोर एठी प्रश्न स्वाभाविक प्राकृतिक नियम हैला जलर उपरि भाग सदाबेले समतल रहे हां तार समस्त अन्य पार्श्व वक्र रही पारे बा जेमिति रही पारे किंतु उपरि भाग समस्त समतल रहिबो एहा होची प्रकृतिर नियम नियम एहा कोनसी स्थूल वस्तु न जे ताको हमें गदेई कि गोटे पाखो गदेई दबा ना जमा जदि स्थल भाग नथिला पृथ्वी स्थल भाग प्रकाश हेई नथिला सब बुड़ी गितला ताले से बाइबल वर्णित परमात्मा केमिति जल को एकत्रित कले कोठी ताको गदेई जाके होची हास्यास्पद कथा नहीं इटा तो माने सुनिला बेलकु तो ठीक लागोनी जे जल को पुनी गदेइबे गदेइबो एकत्रित करियो एकत्रित करिवो के जदि स्थल भाग नाही हां स्थल भाग नाही ताको गदेइला परे अर्थात ए जगार मु जदे बही की हाका कर देबी ए जगाटा समान काच टेबुलटा देखा जिवो किंतु आपको तो गोटे पट को नवा संभव नुह ना जदि संभव नुह ताले सेठी से केमिति गोटे जगह रे नै कि जल को रखिले ए सब जिंस को तर्क रे समाधान करियर अछि अच्छा ये तो तर्क रे समाधान हेई पारे जल एकाठी हेई ना
ତା ଉପରି ଭାଗ କେବେ ବି ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତଳ ଭାଗ ହେଇପାରେ। ତଳ ଭାଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉପରି ଭାଗ ସମଗ୍ର ଜଳ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଅଧସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଯଦି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନାହିଁ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ବି ଥାଇପାରେ। ଯଦି ସେମିତି ଥିଲା, ଯଦି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ନଥିଲା ସେଠି କଣ ଥିଲା? କାରଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ତ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଜଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଜଳ ନଥିଲା ସେଠି କଣ ଥିଲା? ସେଠି କଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା? ତେଣୁ ଜଳ ରହିବା ଗୋଟେ ଆଧାର ଦରକାର। ସେ ଆଧାରଟା କଣ ଥିଲା? ଇଏ ହେଲା ମାନେ ବିତର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍କ ସିଦ୍ଧ କର। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିଲା। ଅତଏବ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ବା ଆମେ ଧରି ନେବା ଯେ ସମସ୍ତ ଜଳମୟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜଳରାଶିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା କିଏ? ଧାରଣ କରିଥିଲା? ଗଲା, ଜଳ ଏକ ତରଳ ମିଶ୍ରଣ, ଏହାକୁ ବିନା ଆଧାରେ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଧାରଣର ଆଧାର କଣ ଥିଲା ସେଠି? ସେ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ନିରବ। ତେଣୁ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କୌତୁହଳ ଆସୁଛି, ମାନେ କଣ ଏଇ ଜିନିଷ, ମାନେ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହିଦେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଶୁଣିଦେବେ, ତାଳି ମାରି ହଁ ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତର୍କରେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କେମିତି ଜଳଟା ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ, ତମେ ତର୍କରେ ସିଦ୍ଧ କର, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣ, ହୃଦବୋଧ କର। ତମର ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ହୃଦବୋଧ ହବନି ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଯେ ତର୍କରେ ତମେ ସେଟା ତର୍କରେ ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଦିଅ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ଇଏ କଥା। ଆଜ୍ଞା।